Assalamu alaikum dear students and viewers. Today we will discuss a very small chapter of your 11th botany, that's plant anatomy. I have selected around 6 questions which are likely to be asked in your upcoming board examinations. So let's get started. We have to define these three terms: plant anatomy, tissue and meristem. पहले we will define term plant anatomy. Plant anatomy. Plant anatomy का मतलब क्या है देख लेना. In case of morphology, we study the study of external structures. We study external structures in case of morphology. But in case of anatomy, we study the anatomical or internal structures of plant organs or be it animal parts. So when we say plant anatomy, it means the study of internal structures of plants or plant organs using microscopes or other instruments. So simply we can define plant anatomy as the study of internal structures of plants. The study of internal structures of plants is known as plant morphology. I mean what we call plant anatomy. We can otherwise call it internal morphology, because in case of morphology we study the study of external structures. In case of plant anatomy we study internal structures. So plant anatomy can be otherwise called as internal morphology, no problem. Second term is tissue. Second term is tissue. Where to define term tissue? शाबाश. टिश्यू देखो, टिश्यू क्या है? प्लांट्स के अंदर टिश्यू हो गया एक ग्रुप सेल्स का जो सिमिलर भी हो सकते हैं, डिसिमिलर भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं, लेकिन इन ग्रुप ऑफ सेल्स का ओरिजिन सेम होना चाहिए और ये सिमिलर फंक्शंस करने चाहिए. मतलब क्या हो गया देखो, मैं आपको समझाता हूँ. यहाँ पहले मैं करूंगा डिफाइन इसको. व्हाट इज टिश्यू? A group of similar or dissimilar cells, group of similar or dissimilar cells having common origin. कॉमन ऑरिजिन का मतलब हो गया ये सारे सेल्स एक ही सेल से बने हुए चाहिए. हैविंग कॉमन ऑरिजिन एंड परफॉर्मिंग सिमिलर फंक्शंस is what we call as tissue. A tissue can be defined as a group of similar or dissimilar. Means similar means एक जैसे, dissimilar means different भी हो सकते हैं. भी डायग्राम से समझाऊंगा. Group of similar or dissimilar cells having common origin and performing similar functions is known as tissue. यहाँ भी दिखाऊंगा आपको टिश्यू का मतलब. मैंने यहाँ पे एक ग्रुप ऑफ सेल्स बनाया. सारे सेल्स आपको लग रहे हैं एक ही शेप के हैं, एक ही जैसे है. यहाँ भी एक और ग्रुप ऑफ सेल्स बनाया. लेकिन यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स है, डिफरेंट टाइप्स के सेल्स है, मतलब शेप्स में डिफरेंट में. शाबाश. दिस ग्रुप ऑफ cells is similar, this group of cells is dissimilar. Whether cells are similar in shape or dissimilar in shape, in both the cases we call it tissue, as long as these all cells have been produced from single ancestor cell, single parent cell. यहाँ पे एक सेल है, इस सेल ने डिवीजन के बाद डिफरेंट सेल्स बनाए, आधे सेल्स ने इसमें थोड़ा स्पेशलाइजेशन की, वो थोड़ा बहुत शेप में तब्दील हो गए. दिस ग्रुप ऑफ सिमिलर
और डिसिमिलर सेल्स हैविंग कॉमन ऑरिजिन, इन सारे सेल्स का ऑरिजिन सेम, एक ही सेल से बने हुए हैं, इन सब सेल्स का एक ही ऑरिजिन, एक ही सेल से बने हुए। ग्रुप ऑफ सिमिलर और डिसिमिलर सेल्स हैविंग कॉमन ऑरिजिन एंड परफॉर्मिंग सिमिलर फंक्शन, मतलब एक जैसे फंक्शंस करते हैं सारे मिलके, ये भी एक जैसे फंक्शंस कर सकते हैं, मतलब रिलेटेड फंक्शंस कर सकते हैं। सो दिस ग्रुप ऑफ सिमिलर और डिसिमिलर सेल्स हैविंग कॉमन ऑरिजिन एंड परफॉर्मिंग सिमिलर फंक्शन इज व्हाट वी कॉल एज टिश्यू। नाउ स्टडी ऑफ टिश्यूज को हम बोलते हैं हिस्टोलॉजी। टिश्यू स्टडी को स्टडी ऑफ टिश्यूज, study of tissues is known as histology. Study of tissues is known as histology. Okay, ये दूसरी टर्म हो गई। पहली टर्म थी प्लांट एनाटॉमी, सेकंड वाज टिश्यू। एक और टर्म है यहाँ पे मेरिस्टम, ये अगले पेज पे मैं लिखूँ क्या, यहीं पे लिखूंगा, नो प्रॉब्लम, यहाँ पे जगह है। मेरिस्टम, देखो मेरिस्टम का मतलब हो गया प्लांट्स के अंदर यूजुअली वी सी टू टाइप्स ऑफ सेल्स or two types of tissues broadly. Number one is meristematic cells or meristematic tissues, another is permanent or mature tissues. Meristematic cells हो गए ऐसे cells which retain power of cell division, ऐसे cells जो division के खसलत रखते हैं, जो cell division के काबिल होते हैं, जो cell division करते हैं, इन cells को हम बोलते हैं meristematic. Dividing cells in plants are called meristematic cells, and those cells which have lost this property of cell division, they are called permanent cells or mature cells. They no longer divide. They may divide if they are basically forced to do so. Normally permanent cells do not divide. So यहाँ पे टर्म है मेरिस्टम। मेरिस्टम मेरिस्टमेटिक से क्या साथ रिलेटेड है, मतलब वो डिवीजन के साथ रिलेटेड है। मेरिस्टम एक रीजन है प्लांट का, एक जोन है प्लांट का, एक खास पोर्शन है प्लांट का, जहां पे मौजूद होते हैं कौन से सेल्स, मेरिस्टेमेटिक, मतलब को डिवीजन के फेज में जो होते हैं डिवाइडिंग सेल्स, एक मास सेल्स का, एक ग्रुप सेल्स का, जो एक खास पर्टिकुलर जगह पे प्लांट के ऊपर मौजूद है, जो करता क्या है प्लांट में, सेल डिवीजन करता है, मतलब वो इट कंट्रीब्यूट्स टू ग्रोथ ऑफ द प्लांट। सो मेरिस्टम को हम क्या बोलेंगे, मेरिस्टम इज ए रीजन, इट्स ए पोर्शन ऑफ प्लांट वेयर cells are in continuous state of cell division. Means meristem is a portion of plant, it is a region of plant where meristematic cells matlab dividing cells are continuously in the state of division and contribute to the growth of plant. यहाँ लिखूंगा मैं मेरिस्टम क्या है, a region कंसिस्टिंग ऑफ, मेरिस्टम हो गया एक ऐसा पोर्शन प्लांट का, ए रीजन कंसिस्टिंग ऑफ डिवाइडिंग सेल्स। कंट्रीब्यूट किसके लिए कर रहा है, कंट्रीब्यूटिंग टू द ग्रोथ ऑफ प्लांट। एक ऐसा रीजन, एक ऐसा पोर्शन प्लांट का जहां पे सेल्स कंटिन्यूसली स्टेट ऑफ डिवीजन में होते हैं, वो कंट्रीब्यूट करते हैं प्लांट के ग्रोथ के लिए, इसको हम बोलते हैं ना मेरिस्टम। मैं आपको एक सिंपल डायग्राम से समझाऊंगा। मेरे पास एक प्लांट है यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे, ये नीचे रूट सिस्टम है ऊपर स्टेम है, इस पे लीव्स है। देखो प्लांट्स के ऊपर होता है शूट का टिप जो होता है, स्टेम का टिप होता है, शूट का टिप, यहाँ पे होता है मेरिस्टम एक, जिसको हम बोलते हैं नाम शूट एपिकल मेरिस्टम। शूट के टिप पे होता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो एक्चुअली प्लांट को यानी कि शूट को इलांगेट करता है, प्राइमरी ग्रोथ मतलब को लेंथ में इसको बढ़ाता है। इसी तरह रूट के टिप पे, रूट कैप के पीछे मौजूद होता है रूट एपिकल मेरिस्टम जो रूट को ग्रोथ कराने में हेल्प करता है, मतलब इट इंक्रीज द लेंथ ऑफ द रूट। इसी तरह प्लांट के लीफ के बगल में जिसको हम बोलते हैं एक्सल, एक्सल में होते हैं बड्स, उन बड्स के पास भी पोटेंशियल होता है डिवाइड करने का, जो आगे जाके या फ्लावर बना सकते हैं, अगर ये फ्लोरल बड होगा कभी कभार ये ब्रांच बना सकता है। मतलब कहने का मतलब है वेयर आर दीज मेरिस्टम्स लोकेटेड इन द प्लांट, मेरिस्टम्स कैन बी लोकेटेड एट द टिप ऑफ शूट, व्हाट वी कॉल्ड ए शूट एपिकल मेरिस्टम, क्योंकि मेरिस्टम यहाँ पे शूट की टिप पे है।
or it can be present at tip of root, we call it root apical meristem, or it can be present in the axil of leaf जो branch या flower बनाता है. Okay, so these are the terms plant anatomy, tissue and meristem. आगे बढ़ेंगे. Next क्वेश्चन है टाइप्स ऑफ टिश्यू सिस्टम्स इन प्लांट्स. ब्रीफली, जिस तरह हमारे पास एनिमल्स में होते हैं नॉर्मली 4 टाइप्स ऑफ टिश्यू सिस्टम्स. एनिमल्स की बात कर रहा हूँ. वी हैव एपिथेलियल टिश्यू सिस्टम, वी हैव नर्वस टिश्यू सिस्टम जिसमें ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड आता है. थर्ड वी हैव कनेक्टिव टिश्यू सिस्टम जिसमें ब्लड और लिम्फ आता है. और फोर्थ है मस्क्यूलर टिश्यू सिस्टम, मसल्स एंड ऑल. इसी तरह प्लांट्स में 4 नहीं, प्लांट्स में होते हैं 3 किस्म के टिश्यू सिस्टम्स. तो यहाँ पे है क्वेश्चन टाइप्स ऑफ टिश्यू सिस्टम्स इन प्लांट्स. तो प्लांट्स के अंदर कितने किस्म के टिश्यू सिस्टम्स है? मैं लिखूंगा डायरेक्टली 3 टाइप्स ऑफ टिश्यू सिस्टम्स आर प्रेजेंट इन प्लांट्स. 3 टाइप्स ऑफ टिश्यू सिस्टम्स. एनिमल्स में 4 होते हैं, एपिथेलियल, मस्क्यूलर, नर्वस टिश्यू सिस्टम एंड कनेक्टिव टिश्यू सिस्टम. प्लांट्स के अंदर 3 किस्म के टिश्यू सिस्टम्स पाए जाते हैं. पहला क्या है प्लांट्स में? दैट्स कॉल्ड, यहाँ एपिथेलियल नहीं, यहाँ बोलते हैं एपिडर्मल. एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम एक है ये. दूसरा है प्लांट्स के अंदर ग्राउंड टिश्यू सिस्टम, जिसको कभी कभार बोलते हैं फंडामेंटल टिश्यू सिस्टम, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम. ये दूसरा टिश्यू सिस्टम है प्लांट्स का. और तीसरा है वेस्क्यूलर टिश्यू सिस्टम. प्लांट्स कंसिस्ट ऑफ 3 टाइप्स ऑफ टिश्यू सिस्टम्स: एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम एंड वेस्क्यूलर टिश्यू सिस्टम. एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम में क्या क्या आता है प्लांट्स में? इसमें आते हैं 3-4 चीजें, याद रखिएगा. इसमें क्या क्या आता है देख लीजिएगा. एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम में आता है इंक्लूड्स, क्योंकि हमारी बॉडी का कोई भी आप पार्ट लेंगे इट्स कवर्ड विद स्किन. स्किन उसको ऊपर से प्रोटेक्ट करता है. इसी तरह प्लांट्स का आप रूट ले लो, स्टेम ले लो, ब्रांच ले लो, लीफ ले लो, फ्लावर, फ्रूट, सीड ले लो. हर प्लांट के ऑर्गन के ऊपर होता है कवर जिसको हम बोलते हैं स्किन नहीं, वी कॉल इट एपिडर्मिस. इसी तरह यहाँ भी प्लांट के अंदर जो एपिडर्मल सिस्टम है एपिडर्मिस का बना होता है. एक चीज इंक्लूड्स एपिडर्मिस. हमारा स्किन होता है, प्लांट्स का होता है एपिडर्मिस कवर, एक्सटर्नल कवर. इसमें एपिडर्मिस आते हैं और वो सारी चीजें जो एपिडर्मिस से उठते हैं और या एपिडर्मिस से बनते हैं, जैसे इट इंक्लूड्स एपिडर्मिस. एपिडर्मिस के सेल से बनते हैं रूट हेयर्स. अभी मैं दिखाऊंगा ये एक सिंपल डायग्राम में. रूट हेयर्स आते हैं इसमें. इसमें आते हैं स्टेम से उठते हैं शूट, या मैं लिखूंगा स्टेम हेयर्स, जिनको हम कभी कभार ट्राइकोम्स भी बोलते हैं. शूट हेयर को बोलते हैं ट्राइकोम भी. इसमें आता है स्टोमेटा भी. शाबाश. एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम इंक्लूड्स एपिडर्मिस, रूट हेयर्स, शूट हेयर्स, स्टेम हेयर्स और ट्राइकोम्स व्हाट यू कॉल, और इसमें आता है स्टोमेटा. शाबाश. एक सिंपल डायग्राम से मैं आपको समझाऊंगा ये मतलब. हमारे पास एक प्लांट है, ये मान लीजिए आप प्लांट है हमारे पास. प्लांट का जो जमीन से ऊपर होता है पोर्शन, ग्राउंड से ऊपर होता है, वी कॉल इट शूट सिस्टम. जो पोर्शन प्लांट का होता है जमीन के अंदर, वी कॉल इट रूट सिस्टम. नो प्रॉब्लम. अगर हम रूट सिस्टम की बात करेंगे या शूट सिस्टम की बात करेंगे, रूट सिस्टम हो या शूट सिस्टम, इन पे होता है मौजूद, मैंने अभी बोला, बाहर से प्रोटेक्शन कवर, वी कॉल इट एपिडर्मिस. एपिडर्मिस बाहर से कवरिंग होती है, सिंगल लेयर्ड होता है नॉर्मली एपिडर्मिस. और रूट के अंदर इस एपिडर्मिस से कुछ सेल से बनते हैं इलॉन्गेशंस. ऐसे एपिडर्मिस के कुछ सेल्स रूट के अंदर बनाते हैं इलॉन्गेशंस, जिनको हम नाम देते हैं रूट हेयर्स. देखो ये तो एपिडर्मिस है, ये रूट का एपिडर्मिस है. मैं लिखूंगा सीधे ईपीडी, एपिडर्मिस, रूट का एपिडर्मिस. चलो ये एपिडर्मिस है, ये प्रोटेक्शन देगा इसको.
लेकिन साथ में एपिडर्मिस के कुछ सेल्स जिनको हम बोलते हैं ट्राइकोब्लास्ट्स, इन सेल्स को जो ये एपिडर्मिस से बनाते हैं रूट हेयर्स, इनसे उठते हैं इलांगेशंस, वी कॉल देम रूट हेयर्स। रूट हेयर्स क्या है? दीज आर द इलांगेशंस, दीज आर द आउटग्रोथ्स ऑफ एपिडर्मल सेल्स ऑफ रूट। रूट के एपिडर्मिस के सेल्स से इलांगेशंस उठते हैं, इन्हीं का नाम है रूट हेयर्स। और ये रूट हेयर्स जो होते हैं यूनिसेल्युलर होते हैं, एक सेल्ड का बना होता है, एक सेल का बना होता है। इनका मेन फंक्शन होता है, दीज आर द मेन एंट्री पॉइंट्स फॉर वाटर एंड मिनरल एब्जॉर्प्शन। रूट के अंदर सबसे ज्यादा वाटर की, मिनरल्स की एब्जॉर्प्शन इन्हीं रूट हेयर से ही होती है। बाकी एपिडर्मिस से भी होता है, कोई भी सेल एपिडर्मिस की ले सकती है वाटर, लेकिन चूंकि इनका सरफेस एरिया ज्यादा है, कंटेक्ट ज्यादा है सॉइल के साथ, with the result maximum absorption in the root takes place through these root hairs. Root hairs are outgrowths from epidermis of root, and these are primarily meant for increasing surface area for water and mineral absorption. को रूट हेयर भी इसी के साथ खत्म हो गया है। ये रूट हेयर्स यूनिसेलुलर होते हैं, उठते हैं रूट के एपिडर्मिस से। फिर मैंने क्या बोला? शूट सिस्टम और स्टेम हेयर्स और ट्राइकोम्स। देखो, अगर हम अब जाएंगे स्टेम के पास, स्टेम पे भी होगा एपिडर्मिस बाहर से कवर, और कुछ सेल्स एपिडर्मिस के, लेकिन कहाँ? स्टेम में या शूट में। यहां से भी दिखाऊंगा, स्टेम के एपिडर्मिस के कुछ सेल्स ये क्या बनाते हैं? इन्होंने भी बनाई आउटग्रोथ, इलांगेशन। इन्होंने भी आउटग्रोथ बनाई, इलांगेशन बनाई, लेकिन ये इलांगेशन देखो, ये मल्टी सेल्यूलर है, बहुत सारे सेल्स है इस इलांगेशन में। दीज इलांगेशंस, दीज आउटग्रोथ्स विच डेवलप फ्रॉम द एपिडर्मिस ऑफ स्टेम और शूट, वी कॉल देम शूट हेयर्स, क्योंकि शूट से उठ गया, स्टेम क्योंकि ये पोर्शन है, मेन पोर्शन है शूट का, और वी कॉल देम अदरवाइज ट्राइकोम्स। फर्क क्या है? रूट हेयर्स आर यूनिसेल्युलर एंड डेवलप फ्रॉम रूट एपिडर्मिस। Shoot hair, stem hairs और trichomes are multicellular and develop from shoot epidermis. मैं आपको बोलता हूँ शूट हेयर का, आपने देखा होगा जो लर्कुल छनासन लर्कुल, लर्कुल इसका जो स्टेम होता है या इसके जो लीव्स होते हैं, उन पे होते हैं वो छोटे छोटे स्पाइन्स जैसे स्ट्रक्चर्स लीव्स के ऊपर या स्टेम के ऊपर। वो जो छोटे छोटे वो प्रिकल्स होते हैं, उन्हीं का एक्चुअली जो आपको लग रहा है सुइयां जैसे, नीडल्स जैसे, वो एक्चुअली उस पे होते हैं ट्राइकोम्स। ओके, ये प्रोटेक्शन भी करते हैं, ये रिड्यूस करते हैं वाटर लॉस भी। चलिए, फिर क्या है हमारे पास? स्टोमेटा। स्टोमेटा के बारे में मैं तफसीलन बात कर रहा हूँ, क्योंकि अगला क्वेश्चन हमारा स्टोमेटा ही है। स्टोमेटा के बारे में तफसीलन बात कर रहा हूँ। ये लीफ के एपिडर्मिस से नॉर्मली बनते हैं। सो हम क्या लिख सकते हैं एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम में? इट इंक्लूड्स एपिडर्मिस, रूट हेयर्स, शूट हेयर्स और ट्राइकोम्स एंड स्टोमेटा। रूट एपिडर्मिस के बारे में क्या लिखेंगे? एपिडर्मिस इज यूजुअली सिंगल लेयर्ड, गिव्स प्रोटेक्शन। Normally, epidermis is usually single layered and gives protection. That's it. Epidermis is usually single layered and gives protection. Root hairs are unicellular outgrowths from epidermis of root, which are meant for increasing surface area for water and mineral absorption. These are unicellular. And shoot hairs, stem hairs are trichomes. These are the multicellular outgrowths that develop from epidermis of stem or shoot, which are meant for providing defense to the plant and also reduce water loss और transpiration को ये घटाते हैं। स्टोमेटा के बारे में तफसीलन बात होगी आगे। दूसरा किस्म क्या है टिश्यू सिस्टम का हमारे पास? यस, वी हैव ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। ग्राउंड टिश्यू सिस्टम या फंडामेंटल टिश्यू सिस्टम है, इसमें आते हैं सारे के सारे टिश्यूज, सारे के सारे टिश्यूज। किसको छोड़ के? एक तो एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम को छोड़ के, और वेस्क्यूलर टिश्यू सिस्टम यानी कि जाइलम और फ्लोएम को छोड़ो, यहाँ से एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम को छोड़ो, बाकी जो कुछ रह गया वो सारा ग्राउंड टिश्यू। मतलब इंक्लूड्स ऑल टिश्यूज, दो को छोड़ के, एक्सक्लूडिंग एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम यानी कि ये ETS एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम और VTS वेस्क्यूलर टिश्यू सिस्टम एंड VTS वेस्क्यूलर टिश्यू सिस्टम। एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम और वेस्क्यूलर टिश्यू सिस्टम को छोड़ के जो कुछ आता है बाकी वो सारा का सारा कहलाता है ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। इंक्लूड्स ऑल टिश्यूज एक्सक्लूडिंग एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम एंड वेस्क्यूलर टिश्यू सिस्टम। लाइक क्या क्या आएगा इसमें? इसमें क्या क्या आता है? इसमें आता है
इसमें आता है हाइपोडर्मिस, ये सिस्टम में होता है मौजूद, बस सिस्टम्स में होता है हाइपोडर्मिस, एपिडर्मिस के नीचे एक मैकेनिकल लेयर जो सपोर्ट करता है सिस्टम को। इसके अलावा कॉर्टेक्स होता है, ये हम आगे देखेंगे जब हम पढ़ेंगे सिस्टम बाकी चीजें। हाइपोडर्मिस आता है इसमें, कॉर्टेक्स आता है इसमें जो स्टोरेज करता है नॉर्मली, एंडोडर्मिस आता है इसमें, एक और लेयर है, पेरिसाइकल आता है इसमें, और इसमें पित्त आता है। ये पांचों के पांच चीजें आते हैं ग्राउंड टिश्यू सिस्टम के अंदर। इनमें तफसीलन हम बात कर सकते हैं जब हम आगे पढ़ेंगे ट्रांसवर्स सेक्शंस। सो ग्राउंड टिश्यू सिस्टम ये सबसे बड़ा टिश्यू सिस्टम है, बिकॉज इसमें बहुत सारे टिश्यूज आते हैं। ग्राउंड टिश्यू सिस्टम यू कैन कॉल इट इज द लार्जेस्ट टिश्यू सिस्टम इन प्लांट्स एंड इंक्लूड्स टिश्यूज लाइक हाइपोडर्मिस, कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, पेरिसाइकल एंड पित्त। इन पे बात नहीं करेंगे, अभी हम आगे देखेंगे इनके बारे में। फिर है वेस्क्यूलर टिश्यू सिस्टम, जिसमें आते हैं दो ही चीजें, इंक्लूड्स, शाबाश, वेस्क्यूलर टिश्यू सिस्टम इंक्लूड्स दो चीजें। इसमें आता है जाइलम और फ्लोएम। जाइलम और फ्लोएम को इकट्ठे बोलते हैं वेस्क्यूलर टिश्यू या वेस्क्यूलर टिश्यू सिस्टम। जाइलम का आपको पता होगा फंक्शन क्या है। जाइलम इट प्लेज रोल इन कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम रूट सिस्टम टू द लीव्स, द शूट सिस्टम। इसके अलावा ये नाइट्रोजन को भी ट्रांसफर करता है रूट से शूट तक। आल्सो इट गिव्स मैकेनिकल सपोर्ट, स्ट्रेंथ भी देता है प्लांट को, ये जाइलम करता है। और फ्लोएम जो है, फ्लोएम करता है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड, जो लीव्स में फूड बनता है फोटोसिंथेसिस से, उसको ट्रांसपोर्ट करता है वो लीव से टू रेस्ट ऑफ द प्लांट पार्ट्स। चलो, वेस्क्यूलर टिश्यू सिस्टम इंक्लूड्स जाइलम एंड फ्लोएम। वेस्क्यूलर टिश्यू सिस्टम के बारे में हम आगे तफसील में बात करें। एक क्वेश्चन मैंने लगाया है इसमें, टाइप्स ऑफ वेस्क्यूलर बंडल, उसमें हम थोड़ा बात कर सकते हैं इसमें। सो दिस इज ब्रीफ अबाउट टाइप्स ऑफ टिश्यू सिस्टम इन प्लांट्स। वी हैव थ्री टाइप्स ऑफ टिश्यू सिस्टम, एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम, वेस्क्यूलर टिश्यू सिस्टम। दैट्स ऑल। आगे बढ़ेंगे। अब एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम में हमने बोला था एक पार्ट आता है स्टोमेटा भी। यहाँ पे हम स्टोमेटा के बारे में थोड़ा बात करेंगे। स्टोमेटा क्या है पहले, फिर हमें देखना है डाइकॉट और मोनोकॉट स्टोमेटा में क्या फर्क है। तो पहले हम देखेंगे स्टोमेटा है क्या एक्चुअली, यहां देखेंगे। स्टोमेटा, स्टोमेटा प्लूरल टर्म है, इसका सिंगुलर आ जाएगा, मैं ब्रैकेट में लिखूंगा। सिंगुलर मतलब हो गया एक स्टोमेटा को हम बोलेंगे स्टोमा। स्टोमेटा सिंगुलर इज स्टोमा। नाउ स्टोमेटा क्या है? दीज आर माइन्यूट पोर्स। यहां दिखाऊंगा एक डायग्राम में। मेरे पास एक लीफ है यहां, ओके, लीफ है मेरे पास। लीफ के ऊपर अगर हम देखेंगे माइक्रोस्कोप में, आंखों से नजर नहीं आ जाएगा ऐसे। माइक्रोस्कोप के अंदर आपको छोटे छोटे पोर्स नजर आ जाएंगे, छोटे छोटे माइन्यूट माइक्रोस्कोपिक पोर्स लीफ के ऊपर। लीफ के एपिडर्मिस के ऊपर, ऊपर से भी हो सकते हैं, नीचे वाले पोर्शन से भी हो सकते हैं, ऊपर एपिडर्मिस वाले पे, नीचे वाले एपिडर्मिस पे भी हो सकते हैं ये। सो दीज माइन्यूट पोर्स विच आर प्रेजेंट ऑन एपिडर्मिस ऑफ लीव्स यूजुअली, हालांकि कभी कभार ये स्टेम के ऊपर भी हो सकते हैं अगर स्टेम होगा ग्रीन। अगर स्टेम होगा प्लांट का ग्रीन, जैसे होता है हर्बेशियस छोटे छोटे ग्रासेस में होता है स्टेम ग्रीन, वहां पे भी ग्रीन स्टेम के एपिडर्मिस पे भी हो सकते हैं स्टोमेटा मौजूद, लेकिन नॉर्मली दे आर रिस्ट्रिक्टेड टू लीव्स। क्या है स्टोमेटा? दीज आर माइन्यूट पोर्स प्रेजेंट ऑन एपिडर्मिस ऑफ लीव्स और herbaceous stems, and the primary function of stomata, the main function of stomata is not transpiration, is not losing water, but primary function of stomata is exchange of gases, gaseous exchange, not transpiration. Transpiration तो एक necessary evil है जो एक्चुअली चला जाता है वाटर लॉस थ्रू स्टोमेटा, लेकिन प्लांट ने स्टोमेटा नहीं बनाया है ट्रांसपिरेशन के लिए। प्लांट ने स्टोमेटा बनाया है ओनली फॉर गैसियस एक्सचेंज, टू एक्सचेंज कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन विद एटमॉस्फेयर एंड द प्लांट. So we'll write the first point about stomata here. What is stomata? These are minute pores.
स्टोमेटा आर माइन्यूट पोर्स, छोटे छोटे पोर्स होते हैं। कहां पे होते हैं मौजूद? प्रेजेंट ऑन एपिडर्मिस ऑफ लीव्स, लीफ के एपिडर्मिस पे, एंड हो सकते हैं एंड herbaceous stems. Herbaceous means green, soft stems, and herbaceous stems. The minute pores present on epidermis of leaves and herbaceous stems. शाबाश। तो what is the primary function of stomata? Stomata का असली फंक्शन क्या है? क्यों stomata प्लांट ने इवॉल्व किया, बनाया है? सिर्फ और सिर्फ गैशियस एक्सचेंज के लिए। लेकिन ट्रांसपिरेशन होती ही होती रहती है इसके बाद, लेकिन ट्रांसपिरेशन एक्चुअली असली फंक्शन नहीं है स्टोमेटा का। यहाँ लिखेंगे primary function of stomata is not transpiration. Transpiration means water loss in the form of what we call water vapors. Transpiration. Primary function of stomata is not transpiration, is not water loss. बट फिर क्या है? बट gaseous exchange, but exchange of gases, but gaseous exchange, यानी कि प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करता है एटमॉस्फेयर से, स्टोमेटा के थ्रू ही लेता है जो इसको लगता है फोटोसिंथेसिस में, और रिलीज करता है एक्सेस ऑक्सीजन जो एक बाय प्रोडक्ट के तौर पे निकलता है फोटोसिंथेसिस में, उसको एटमॉस्फेयर में करता है रिलीज। दिस होल गैस एक्सचेंज टेक्स प्लेस थ्रू द स्टोमेटा। ओके, प्राइमरी फंक्शन ऑफ स्टोमेटा इज नॉट ट्रांसपिरेशन बट गैसियस एक्सचेंज। अब स्टोमेटा किस किस चीज़ का बना होता है? स्टोमेटा में होता है बीच में ओपनिंग। अगर हम देखेंगे यहाँ पे स्टोमेटा को हमने यहाँ पे इलाबरेट करके दिखाया है, ये माइक्रोस्कोपिक इमेज है। स्टोमेटा में बीच में होती है, देखो ना, ये देखो बीच में है एक ओपनिंग, जो दो सेल्स है, दो सेल्स जो गार्ड करते हैं, गार्ड सेल्स जिनको हम बोलते हैं स्टोमेटा को। इसके बीच में रहते है एक ओपनिंग, दिस ओपनिंग। इस ओपनिंग को हम नाम देते हैं स्टोमेटल पोर भी बोलते हैं, स्टोमेटल अपर्चर भी बोलते हैं। अपर्चर, ओपनिंग, पोर, वन एंड सेम थिंग। और दो साइड्स में, यहाँ से ये है एक गार्ड सेल, में दूसरा मार्कर इस्तेमाल, ओके, यहाँ से दिस इज वन गार्ड सेल, यह एक गार्ड सेल, यह है दूसरी गार्ड सेल, यहां से दूसरी गार्ड सेल है, और दो गार्ड सेल्स के बीच में गैप रहती है जिसको हमने नाम दिया स्टोमेटल पोर, और ये दो गार्ड सेल्स है। दीज आर टू गार्ड सेल्स, गार्ड सेल नंबर 1, गार्ड सेल नंबर 2, ऐसे दो गार्ड सेल्स है, बीच में ओपनिंग है। सो स्टोमेटा कंसिस्ट ऑफ टू गार्ड सेल्स सराउंडिंग एन ओपनिंग कॉल्ड स्टोमेटल पोर और स्टोमेटल अपर्चर। और जो सेल्स सराउंड करते हैं किनको? गार्ड सेल्स को। देखो ये गार्ड सेल्स को ये सेल करते हैं सराउंड, ये सेल करते हैं सराउंड। यहाँ पे अच्छी तरह से नजर आपको आ रहा है ये वाली, चलो मैं दूसरा मार्कर पेन इस्तेमाल करूँगा। ये वाली सेल देखो, गार्ड सेल्स के ऊपर ये वाली सेल है, ये वाली सेल है, ये वाली सेल है, ये वाली सेल है, ये वाली सेल है। जो सेल्स गार्ड सेल्स को सराउंड करते हैं, इन सेल्स को हम नाम, ये एपिडर्मिस के ही सेल्स होते हैं, बिकॉज गार्ड सेल खुद एपिडर्मिस की सेल है। सेल्स विच सराउंड गार्ड सेल्स दे आर कॉल्ड सब्सिडियरी और एक्सेसरी सेल्स। शाबाश। स्टोमेटा कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स। नंबर 1, टू गार्ड सेल्स which surround opening or pore called stomatal aperture, and the cells which surround the guard cells called subsidiary or accessory cells. Together इन तीनों चीजों को, stomatal aperture जो ओपनिंग है बीच में, दो गार्ड सेल्स है, और गार्ड सेल्स को जो सराउंड करते हैं ऑल अराउंड सेल्स, what we call subsidiary cells, together it forms stomatal apparatus. स्टोमेटल apparatus. ये स्टोमेटल apparatus जो है ये डायकॉट्स का है, डायकॉट्स में ऐसा होता है, मोनोकॉट्स में स्टोमेटल apparatus ऐसा होता है। यहाँ भी दिखाओ, ये गार्ड सेल्स दो है, दिस इज वन गार्ड सेल हियर, दिस इज वन गार्ड सेल, ओके, डंबल शेप की है, यहाँ बीन या किडनी शेप की है। ये दूसरी गार्ड सेल है, दिस इज सेकंड गार्ड सेल, यस, दिस इज सेकंड गार्ड सेल। दो गार्ड सेल जहाँ भी है,
यहाँ भी है। डाइकाट्स में ऐसा होता है, मोनोकाट्स में ऐसा। डाइकाट्स में गार्ड सेल्स की शेप होती है किडनी और बीन शेप्ड। मोनोकाट्स में होते हैं डम्बेल, डम्बल शेप, जैसे आपने पी ऑर्बिटल देखा होगा, वो भी डम्बल शेप का ही होता है। तो बीच में स्टोमेटल अपर्चर है, यहाँ भी स्टोमेटल अपर्चर है, दिस इज स्टोमेटल अपर्चर, दिस इज द ओपनिंग। ये स्टोमेटल अपर्चर यहाँ भी है बीच में ओपनिंग। और जो सेल्स सराउंड करते हैं गार्ड सेल्स को, जैसे ये वाली सेल है, यहाँ से नहीं दिखाया इसने, यहाँ से ये सेल, ये सेल, जो सेल सराउंड करते हैं गार्ड सेल्स को, इनको हम नाम देते हैं सबसिडरी सेल, जो यहाँ पे भी थे। तो दिस इज सिटोमेटल apparatus ऑफ डाइकॉट्स, दिस इज सिटोमेटल apparatus ऑफ मोनोकॉट। वही लिखा है सिटोमेटा डाइकॉट वर्सेस मोनोकॉट, फर्क क्या है। अगर हम देखेंगे डाइकॉट वर्सेस मोनोकॉट स्टोमेटा में क्या फर्क है, देखो यहाँ पे दिखा है डायग्राम ए, दिस वन, दिस इज सिटोमेटा आर बीन शेप्ड, स्टोमेटा विद बीन शेप्ड या व्हाट वी कॉल एज किडनी शेप्ड गार्ड सेल्स यहाँ। तो मोनोकॉट्स के अंदर क्या है, सिटोमेटा विद डम्बेल शेप्ड गार्ड सेल्स, काम जो मैंने अभी बोला आपको, मेन डिफरेंस है ये। सो सिटोमेटल अपर्चर, सिटोमेटा में क्या क्या आता है तफसीलन बात करेंगे दोनों के बारे में। यहाँ दिखाता हूँ आपको, ये डायग्राम परफेक्ट है, यहाँ यहाँ लिखूंगा। सिटोमेटा एक्चुअली किस चीज का बना, 3 चीजों का बनाता है, शाबाश। स्टोमेटा consists of क्या क्या, 2 गार्ड सेल्स, 2 गार्ड सेल्स होते हैं स्टोमेटा में, 2 गार्ड सेल्स जो सराउंड करते हैं, सराउंडिंग ओपनिंग, इन 2 के बीच ओपनिंग रहती है, कॉल सिटोमेटल पोर भी बोलते हैं, या मैंने भी बोला आपको सिटोमेटल अपर्चर भी बोल सकते हैं। अपर्चर, पोर, वन एंड द सेम थिंग। स्टोमेटल कंसिस्ट ऑफ 2 गार्ड सेल्स सराउंडिंग ओपनिंग कॉल्ड स्टोमेटल अपर्चर, शाबाश। जो सेल्स इसके अराउंड होते हैं, गार्ड सेल्स के ऊपर, सेल्स सराउंडिंग गार्ड सेल्स आर कॉल्ड, इनको हम नाम देते हैं सब्सिडियरी और एक्सेसरी सेल्स, सब्सिडियरी और एक्सेसरी सेल्स। अब 3 चीजें हमारे पास है। अब क्या क्या है हमारे पास है, सिटोमेटल अपर्चर, सिटोमेटल अपर्चर या सिटोमेटल ओपनिंग, सिटोमेटल पोर, प्लस 2 गार्ड सेल्स जो सराउंड करते हैं अपर्चर को, और गार्ड सेल्स के ऊपर सब्सिडियरी सेल्स। इन तीनों को इकट्ठे बोलते हैं टुगेदर फॉर्म, टुगेदर फॉर्म, इन तीनों को एक ही नाम देते हैं सिटोमेटल, क्या बोलते हैं, apparatus, together called stomatal apparatus. Means stomatal apparatus consists of stomatal aperture, opening, 2 guard cells and surrounding subsidiary cells or accessory cells forming stomatal apparatus. Okay, अब यहाँ लिखूंगा, in dicots guard cells are कैसे होते, बीन और यू कैन से किडनी शेप, किडनी जैसे होते हैं, बीन और किडनी शेप्ड। एंड इन मोनोकॉट्स, मोनोकॉट्स में कैसे होते, आप मोनोकॉट्स लिखो या इवन ग्रासेस, सीरियल्स, मोनोकॉट्स में ग्रासेस में कैसे होते, दे आर गार्ड सेल्स आर व्हाट, डम्बेल शेप्ड, डम्बेल शेप्ड, पी ऑर्बिटल जैसा, जैसे यहाँ पे दिखाऊंगा मैं, दिस इज बीन शेप्ड गार्ड सेल, एक, दूसरी हो गया ऐसे, तो डम्बेल हो गए ऐसे।
ऐसे यहाँ भी स्टोमेटल अपर्चर है, यहाँ भी अपर्चर है, दो गार्ड सेल्स, फिर सराउंडिंग होते हैं सब्सिडरी सेल्स। और गार्ड सेल्स की खास बात है, हाँ यहाँ दिखूंगा यहाँ दिखाता हूँ। नेक्स्ट, गार्ड सेल्स हैव फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। गार्ड सेल्स में कुछ ऐसे प्रॉपर्टीज होते हैं जो बाकी एपिडर्मल सेल्स में या सब्सिडरी सेल्स में नहीं होते हैं। गार्ड सेल्स है फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। देखो गार्ड सेल्स में क्या क्या प्रॉपर्टी है, इनकी शेप होती है थोड़ा डिफरेंट, इनकी शेप होती है डिफरेंट फ्रॉम अदर एपिडर्मल सेल्स, अदर सेल्स ऑफ एपिडर्मिस। अभी मैंने बोला इनकी शेप हो सकती है कैसी, किडनी या बीन शेप्ड, किन में, डाइकॉट्स में, और ये होते हैं डम्बेल शेप्ड, डम्बेल शेप्ड मोनोकॉट्स में। बाकी सेल्स की पर्टिकुलर शेप नहीं होती है। दूसरी डिफरेंस क्या है, दीज आर द ओनली सेल्स ऑफ एपिडर्मिस। एपिडर्मिस के अंदर वाहिद यही सेल्स है कंटेनिंग क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट नहीं पाया जाता एपिडर्मिस के सेल्स में, लेकिन गार्ड सेल्स एक्सेप्शंस है। दीज आर द ओनली सेल्स ऑफ एपिडर्मिस व्हिच कंटेन क्लोरोप्लास्ट, मींस ये फोटोसिंथेसिस भी करते हैं। ओनली सेल्स ऑफ एपिडर्मिस कंटेनिंग क्लोरोप्लास्ट और गार्ड सेल्स। तीसरी डिफरेंस है, इनका इनर वॉल होता है थिक और आउटर वॉल होता है थिन। वो मतलब क्या है भी दिखाऊंगा। देयर इनर वॉल इज थिकर, थिक होता है, मोटा होता है, एंड आउटर वॉल थिनर। एंड आउटर वॉल थिनर। ऐसे ये मान लीजिए आप, ये गार्ड सेल एक है, मैंने अब डाइकॉट्स की बनाई, किडनी और बीन शेप्ड, तो शेप में डिफरेंट है, यस इंडीड। और इसमें होते हैं यहाँ, दीज आर क्लोरोप्लास्ट्स, इनमें क्लोरोप्लास्ट। अदरवाइज सेल्स ऑफ एपिडर्मिस डू नॉट कंटेन क्लोरोप्लास्ट। उसको हम बोलते हैं ना मीजोफिल, जिसमें फोटोसिंथेसिस होती है, जिसमें क्लोरोप्लास्ट होते हैं लीफ में। एनीवे इसके अलावा क्या है, इनर वॉल। हाँ मैंने बोला था इनका इनर वॉल, जो अंदर वाला वॉल है जो फेस करता है एक्चुअली स्टोमेटल अपर्चर को, देयर इनर वॉल इज थिक। देखो ये थिल है, थिक है इनर वॉल इनका, और इनका आउटर वॉल थिन है, वही दिखाया। बाकी सारे सेल्स का होता है थिन वॉल ऑल अराउंड, लेकिन इनका क्या है, देयर इनर वॉल इज थिक एंड आउटर वॉल इज थिन। और क्या होता है, इनके वॉल के ऊपर होता है सेल्यूलोस का, सेल्यूलोस मैं बोलूंगा आपको सेल्यूलोस का धागा, आप समझिए। इनके वॉल के ऊपर होता है सेल्यूलोस का धागा जैसा, ऐसे, जो इसको एक्चुअली ओपनिंग और क्लोजिंग में मदद देता है। तो यहां लिखूंगा गार्ड सेल्स के पास क्या होता है, दे हैव रेडियल माइसिलेशन ऑफ सेल्यूलोस माइक्रोफिब्रिल्स, सेल्यूलोस माइक्रोफिब्रिल्स। आप समझना ऐसे, इनके सर्कमफ्रेंस के अराउंड सेलुलोस का धागा जैसा माइक्रोफिब्रल, सेलुलोस के धागे से इसके ऊपर होता है यहाँ कवरिंग, कवरिंग ऑल अराउंड, जो इसको ओपनिंग और क्लोजिंग में मदद देता है। दीज आर द मेन डिफरेंसेस बिटवीन द गार्ड सेल्स एंड रेस्ट ऑफ द एपिडर्मल सेल्स और व्हाट वी कॉल्ड एज सब्सिडरी सेल्स। दे हैव अ डेफिनेट शेप, दे हैव अ पर्टिकुलर शेप, kidney shaped in dicots, double shaped monocots. They are the only cells in epidermis which contain chloroplast, means they are also performing photosynthesis. Inner wall इनका thick होता है, outer wall thin होता है, बाकी सारे cells का thin wall होता है। और इनके पास होता है special type of wall, ऐसे myceliation around their circumference, जो cellulose का बना होता है, which helps in their opening and closing. शाबाश। आगे बढ़ेंगे। Here, next is टाइप्स ऑफ वेस्क्यूलर बंडल्स। मैंने आपको कुछ समय पहले बोला था, वेस्क्यूलर बंडल हम नाम देते हैं जाइलम और फ्लोएम को एक साथ। जाइलम एंड फ्लोएम इज टुगेदर कॉल्ड वेस्क्यूलर बंडल और वेस्क्यूलर सिस्टम। नाउ वेस्क्यूलर बंडल्स के डिफरेंट टाइप्स से मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ। टाइप्स ऑफ वेस्क्यूलर बंडल्स में यहाँ लिखाऊंगा। चलिए
यहां दिखाता हूं। टाइप्स ऑफ वेस्कुलर बंडल्स में पहला, फर्स्ट टाइप ऑफ वेस्कुलर बंडल इज कॉल्ड रेडियल वेस्कुलर बंडल। फर्स्ट टाइप ऑफ वेस्कुलर बंडल इज कॉल्ड रेडियल वेस्कुलर बंडल। देखो वेस्कुलर बंडल में कितने चीजें आएंगे, दो, जाइलम और फ्लोएम। अब हमें देखना है जाइलम कहां से है, फ्लोएम कहां से है। देखो यहां ये जो ये आपको ब्लू से नजर आ रहा है, ये वाला चीज ये फ्लोएम है, और जो ये वाला कलर है ये जाइलम है। ये जाइलम, देखो ये जाइलम 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 जाइलम, ये फ्लोएम फ्लोएम, ये भी फ्लोएम ये भी फ्लोएम। अब देखो जाइलम और फ्लोएम का अरेंजमेंट एक दूसरे के मुकाबले में कैसा है। जब जाइलम और फ्लोएम, अब देखो ये सेंटर मान लीजिए, स्टेम हो या रूट हो वट, ये वाला ये सेंटर है। जब जाइलम और फ्लोएम अलग अलग जगहों पे होंगे, मतलब जाइलम और फ्लोएम एक दूसरे के साथ चिपका हुआ नहीं है, ये अलग अलग जगहों पे है, दूरियों पे है। जब जाइलम और फ्लोएम अलग अलग होगा, अल्टरनेट होगा, देखो यहाँ पे जाइलम है फिर फ्लोएम, जाइलम, देखो यहाँ पे ये फ्लोएम है, ये जाइलम, ये फ्लोएम, ये जाइलम, ये फ्लोएम, ये जाइलम, ये फ्लोएम, ये जाइलम। देखो जाइलम और फ्लोएम अल्टरनेट है, जाइलम फिर फ्लोएम फिर जाइलम फिर फ्लोएम, लेकिन सेंटर से सेंटर के पास नजदीक है जाइलम। देखो जाइलम थोड़ा सेंटर में नजदीक है, लेकिन फ्लोएम दूरी पे है। मतलब वो रेडियस में ये नजदीक है, ये एक रेडियस पे है, वो डिफरेंट रेडियस पे है। व्हेन जाइलम एंड फ्लोएम आर प्रेजेंट अल्टरनेटली, मतलब जाइलम फिर फ्लोएम फिर जाइलम फिर फ्लोएम अल्टरनेटली on same radius or different radii, they are present on different radii. Xylem is closer to the center, phloem is away from the center on different radii. This is called a radial vescular bundle. मीन जाइलम और फ्लोएम का अरेंजमेंट एक दूसरे के साथ क्या है, अल्टरनेट, और रेडियस अलग अलग है। जाइलम नजदीक है सेंटर को, फ्लोएम दूर है सेंटर से। दैट्स इट। शाबाश। क्या लिखूंगा मैं रेडियल वेस्कुलर बंडल में, शाबाश, यहाँ पे xylem and phloem are xylem and phloem are present alternately on different radii, radius का plural. When xylem and phloem are present alternately on different radii, we call it a radial vascular bundle. Example है almost all roots, dicot root, monocot root, कोई भी रूट दुनिया का है, इसके अंदर अरेंजमेंट ऑफ जाइलम और फ्लोएम रहता है रेडियल. ऑल द रूट्स कंटेन रेडियल टाइप ऑफ वेस्कुलर बंडल. व्हाट इज रेडियल नाउ? जाइलम एंड फ्लोएम प्रेजेंट ऑल्टरनेटली ऑन डिफरेंट रेडी. यहाँ पे डायग्राम है, जाइलम फ्लोएम अलग अलग जगहों पे है और जाइलम और फ्लोएम की सेंटर से दूरी अलग अलग है. दिस इज रेडियल. दूसरा हो गया कॉन्जॉइंट वेस्कुलर बंडल. कंजॉइंट का मतलब हो गया जब जाइलम और फ्लोएम रेडियल में ही अलग अलग थे, अब जाइलम और फ्लोएम एक साथ आ जाएगा, एक साथ चिपक जाएगा एक दूसरे के साथ. फेविकोल का मजबूत जोड़ चिपक जाएगा जाइलम और फ्लोएम एक दूसरे के साथ. Now when xylem and phloem is joined together, it forms a common bundle. एक ही ग्रुप में रहते हैं. We call it conjoint. मतलब हो गया ज्वाइन होना. Conjoint मतलब को to get joined, एक साथ चिपक जाना, फेविकोल का मजबूत जोड़. So conjoint means when xylem and phloem is present together. हाँ, conjoint में क्या लिखेंगे? Xylem and phloem are joined together in one bundle, in one group. एक ही बंडल में रहते हैं. अब जब ये जाइलम और फ्लोएम एक दूसरे के साथ आ जाते हैं, एक दूसरे के साथ चिपक जाते हैं, इसमें हमेशा जाइलम आता है बाहर की ओर, आई मीन अंदर की ओर, फ्लोएम आता है बाहर की ओर. वो क्या मतलब है? When xylem and phloem join together, there is a condition. Every time when xylem and phloem join together, phloem is towards the outer side, exterior, towards the epidermis side, while as the phloem is towards the center. ये अंदर की ओर रहता है. Means all
conjoint bundles means vascular bundles are collateral. What does collateral mean? ब्रैकेट में लिखूंगा. Collateral means xylem अंदर की ओर, xylem towards inner and phloem towards outer side या exterior. समझाता हूं. Means conjoint vascular bundles are usually collateral. When xylem and phloem join together, there's a condition. Xylem will be towards the center, while phloem will be towards the outer side. मैं भी दिखाऊंगा आपको ये डायग्रामेटिकली. यहाँ पहले देखो, इसमें xylem यहाँ था, ये xylem था और ये phloem था. xylem और phloem अलग अलग जगहों पे था, लेकिन यहाँ xylem और phloem एक साथ चिपक गया फेविकोल के मजबूत जोड़ के साथ. ये देखो, xylem phloem एक साथ चिपक गया. ये है xylem, ये वाला पोर्शन है xylem और ये वाला पोर्शन है phloem. xylem phloem एक साथ चिपक गया. ये क्या है? जब xylem और phloem एक साथ चिपक जाएगा, we call it conjoint. इसको conjoint बोलते, जॉइन होना. लेकिन आप देखो कंडीशन, phloem बाहर वाले साइड में है, xylem अंदर की ओर है. मीन्स यहाँ पे चिपक जाने के बाद इनमें एक कंडीशन है, phloem will be towards outer and xylem will be towards inner side. Means when xylem and phloem join together, means when they are joined together, means when they are conjoint, they have a condition that phloem will be towards exterior and xylem towards interior of this bundle. So we call this condition as collateral. यहाँ लिखा, we call it as collateral. Means conjoint vascular bundles are usually collateral. They have phloem towards outer side and xylem towards inner side. Okay. फिर कंजेंट के दो टाइप्स है. कंजेंट वेस्कुलर बंडल के दो टाइप्स है, याद रखिएगा. यहां दिखाता हूं. यहां अगर मैं लिखाऊंगा कंजॉइंट वेस्कुलर बंडल के दो टाइप्स है. दो टाइप्स क्या क्या है? एक को हम बोलते हैं ओपन वेस्कुलर बंडल, ओपन. दूसरे को बोलते हैं क्लोज्ड वेस्कुलर बंडल. यू कैन से we have two types of conjoint bundles: open conjoint vascular bundle and closed conjoint vascular bundle. फर्क क्या है? बड़ा सिंपल, सीधा साधा. ओपन में क्या होगा? जो ये xylem और phloem है, इन दोनों के बीच में एक मेरिस्टेमेटिक टिश्यू आएगा, डिवाइडिंग टिश्यू आ जाएगा. व्हाट यू कॉल एज कैम्बियम या वेस्कुलर कैम्बियम जिसको बोलते. देखो यहां से ये सारा का सारा वेस्कुलर बंडल है. ओके, एक साथ xylem phloem एक साथ आ गए, वो ये कंजॉइंट है. देखो यहाँ साइड से इतना वाला पोर्शन xylem, ये ऊपर वाला पोर्शन phloem. xylem phloem एक साथ आ गया, चिपक गया, कंजॉइंट है. phloem बाहर की ओर है, xylem अंदर की ओर है, कोलेटरल है. तो कंडीशन ये. लेकिन आप देखो xylem और phloem के बीच में, ये देखो ना, xylem और phloem के बीच में एक मेरिस्टेमेटिक टिश्यू मौजूद है, जिसको हमने नाम दिया यहाँ पे कैम्बियम. कैम्बियम मीन्स ए मेरिस्टेमेटिक टिश्यू प्रेजेंट क्लोजर टू xylem एंड phloem. मतलब ये xylem के बीच में भी हो सकता है या xylem और वेस्कुलर बंडल के बीच में भी हो सकता है, नो प्रॉब्लम. कैम्बियम मेरिस्टेमेटिक टिश्यू xylem और phloem के बीच में आ गया, वी कॉल इट कैम्बियम. तो जब कैम्बियम आ गया xylem और phloem के बीच, ऐसे वेस्कुलर बंडल को हम बोलते हैं ओपन. ओपन क्यों? क्योंकि ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू डिवाइड करेगा या और xylem और phloem बना सकता है. मीन्स ये सेकेंडरी ग्रोथ और ज्यादा ग्रोथ में मदद देता है. मतलब वो एक्सपेंशन में, रेडियल ग्रोथ में, जिसको हम बोलते हैं सेकेंडरी ग्रोथ. तो अपन में हम क्या लिखेंगे? एक लाइन, कैम्बियम प्रेजेंट किसके बीच? बिटवीन xylem एंड phloem. जब xylem और phloem के बीच कैम्बियम होगा, वी कॉल इट ओपन. जब xylem और phloem के बीच नहीं होगा, देखो यहां पे नहीं है, वी कॉल इट कंजॉइंट क्लोज्ड. Cambium absent between xylem and phloem. Absent between X and P, between xylem and phloem. शाबाश. कैम्बियम होगा तो सेकेंडरी ग्रोथ होगी, नहीं होगा तो सेकेंडरी ग्रोथ पॉसिबल नहीं है, मतलब फर्दर ग्रोथ पॉसिबल नहीं है. इसमें एग्जांपल मैं दूंगा. ओपन वेस्कुलर बंडल होता है मौजूद डाइकॉट्स में, मैं लिखूंगा ऐसे, डाइकॉट एंड जिम्नोस्पर्म सिस्टम. डाइकॉट सिस्टम में और जिम्नोस्पर्म सिस्टम में होता है मौजूद ओपन वेस्कुलर बंडल.
ऐसे जाइलम और फ्लोएम के बीच केमिंग होता है, और ये होता है सारे लीव्स में, ऑल लीव्स। इसके अलावा होता है मोनोकॉट सिस्टम में भी। एनीवे ऑल लीव्स और मोनोकॉट सिस्टम में मौजूद है क्लोज्ड वेस्कुलर बंडल। दीज आर थ्री मेन टाइप्स ऑफ वेस्कुलर बंडल, रेडियल, कंजॉइंट और कंजंक्टिव के दो टाइप्स। ओके, दैट्स एनफ। आगे बढ़ेंगे। अब है अगला क्वेश्चन हमारा, पांचवा क्वेश्चन, इसके बाद लास्ट है। हाँ, बस दो क्वेश्चन है अब। टीएस ऑफ डाइकॉट वर्सेस मोनोकॉट रूट। वेरी सिंपल, आपको डाइकॉट रूट और मोनोकॉट रूट के बीच डिफरेंशिएट करना है, मेन डिफरेंसेस बड़ा सिंपल है। जब भी आप देखेंगे रूट के बारे में एक बात बोलूंगा आपको जनरल। यहाँ पे आपके पास यहाँ पे रूट है, फॉर एग्जांपल ये रूट है, डाइकॉट हो या मोनोकॉट प्लांट का रूट। जब इसका ट्रांसवर्स सेक्शन कट करेंगे, क्रॉस सेक्शन कट करेंगे रिंग जैसा ऐसे, टू स्टडी इट्स इंटरनल स्ट्रक्चर माइक्रोस्कोप के अंडर, आपको ये रिंग आ जाएगी ऐसे नजर माइक्रोस्कोप में। मैं इसमें से आपको एक पोर्शन दिखाऊंगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये वाला पोर्शन। इस पोर्शन को मैं यहाँ पे जूम करके दिखाऊंगा आपको। इसमें क्या क्या आपको दिखेगा, देखो बाहर रूट में होगा एपिडर्मिस, एपिडर्मिस के कुछ सेल्स ने बनाया होगा रूट हेयर, जहाँ से एब्जॉर्प्शन बढ़ जाती है। इसके तुरंत नीचे होगा कॉर्टेक्स, एपिडर्मिस देगा प्रोटेक्शन, और इस पे रूट हेयर जो है इंक्रीज करेंगे सरफेस एरिया फॉर वाटर एब्जॉर्प्शन। इसके बाद होगा इस पे कॉर्टेक्स का एक मल्टी लेयर टिश्यू जो स्टोरेज का काम करता है। इसके बाद होगा एक लेयर का एंडोडर्मिस, जिसपे होता है कैस्पेरिन स्ट्रिप, मतलब थोड़ा ये मोटे होते हैं, यहाँ पे ये मोटे होते हैं, इन पे होती है डिपोजिशन ऑफ सुबेरिन फैट। फिर होता है पेरिसाइकल का एक लेयर नॉर्मली, जिसको हम बोलते हैं नाम ग्राउंड टिश्यू, कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, पेरिसाइकल एंड ऑल। फिर बीच में होगा जाइलम और फ्लोएम। अभी बोला वेस्कुलर बंडल का अरेंजमेंट होता है रूट्स के अंदर रेडियल, मीन्स यहाँ ये अगर जाइलम है, ये फ्लोएम है, ये है जाइलम, ये है फ्लोएम, ये है जाइलम, ये है फ्लोएम। फिर बीच में पिथ हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। फिर बाकी चीजें यहाँ पे आपको दूर से नजर आ जाएंगी। देखो ये चीज मैं करूंगा यहाँ पे एक्सप्लेन, जरा देखते हैं। आपको डाइकॉट और मोनोकॉट रूट के बीच डिफरेंस देखनी है। डाइकॉट और मोनोकॉट रूट के बीच डिफरेंस, अब देखो यहां से लिख के रखूंगा मैं, फिर मैं आपको डिफरेंस दिखाऊंगा। डाइकॉट रूट, यहां से मोनोकॉट रूट, जो डिफरेंस आपको नजर आ जाएगी तो वो हम लिख लेंगे यहां पे। डाइकॉट रूट और मोनोकॉट रूट के बीच डिफरेंस देखो, बाहर होगा डाइकॉट रूट हो या मोनोकॉट रूट, बाहर होगा एपिडर्मिस, यहाँ पे लिखा है एपिडर्मिस, यहाँ भी है एपिडर्मिस, यहाँ भी है बाहर से, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ भी रूट हेयर से, यहाँ भी रूट हेयर से, डिफरेंस कहीं नहीं है। जो एपिडर्मिस covers both dicot root as well as monocot root. Epidermis in both dicot and monocot root gives rise to root hairs for increasing surface area for water absorption. That's true. इसके बाद एपिडर्मिस के नीचे होता है कॉर्टेक्स मल्टीलियर्ड, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये टिश्यू है बड़ा, जो स्टोरेज का काम करता है। यहाँ भी है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये टिश्यू व्हाट वी कॉल्ड एज कॉर्टेक्स। यहाँ भी कॉर्टेक्स है, यहाँ भी कॉर्टेक्स है, कोई प्रॉब्लम नहीं। एपिडर्मिस यहाँ भी नो प्रॉब्लम। एपिडर्मिस के ऊपर यहाँ भी रूट हेयर, यहाँ भी रूट हेयर, नो प्रॉब्लम। एपिडर्मिस के नीचे यहाँ भी कॉर्टेक्स मल्टीलेयर टिश्यू, पैरेन्काइमा टिश्यू स्टोरेज करता है काम, यहाँ भी मल्टीलेयर टिश्यू, एपिडर्मिस के नीचे कॉर्टेक्स स्टोरेज का काम करता है, नो प्रॉब्लम, नो डिफरेंस एट ऑल। फिर यहाँ भी एक लेयर का है एंडोडर्मिस, यहाँ एक लेयर का एंडोडर्मिस है, यहाँ एक और लेयर, यहाँ भी वो एंडोडर्मिस का एक लेयर है, कोई डिफरेंस नहीं। एंडोडर्मिस वहाँ पे भी है, एंडोडर्मिस यहाँ पे भी है, नो डिफरेंस। यहाँ भी एंडोडर्मिस के नीचे एक लेयर है पेरिसाइकल का, फिर यहाँ भी एंडोडर्मिस के नीचे है पेरिसाइकल का एक लेयर, कोई डिफरेंस यहाँ तक नहीं है, तो कोई डिफरेंस नहीं आई। लेकिन फिर डिफरेंस आएगी तो आएगी कहाँ, वो आगे आ जाएगी। यहाँ अगर हम देखेंगे, आपको नजर नहीं आ रहा होगा एग्जैक्टली, तो मैं आपको थोड़ा ये दिखाऊं। यहाँ जाइलम और फ्लोएम का नंबर देखो, यहाँ जाइलम का नंबर 1 2 3 4, 4 जाइलम है यहाँ पे बंडल्स में। फिर फ्लोएम पैच, फ्लोएम 1 2 3 4, यहाँ 4 जाइलम है और 4 फ्लोएम है। यहाँ जाइलम जाइलम जाइलम
जाइलम जाइलम, ये आपके एनसीईआरटी की डायग्राम आप भी देख भी सकते हो, यहाँ जाइलमस बहुत ज़्यादा है और फ्लोएम पैचेस भी उतने ही है, फ्लोएम भी बहुत सारे हैं यहाँ। मीन्स पहली डिफरेंस आपको डाइकॉट और मोनोकॉट रूट में आ जाएगी। ये डाइकॉट वाला है, ये मोनोकॉट वाला है नीचे। डाइकॉट में आपको जाइलम और फ्लोएम का नंबर कम आता है, ये एक भी हो सकता है, दो भी हो सकता है, तीन या ज़्यादा से ज़्यादा चार आ सकता है। यूजुअली 2 से 4 होते हैं, 2 3 या 4 जाइलम और 2 3 4 फ्लोएम। जितने जाइलम होते हैं पैच, उतने फ्लोएम के भी पैच होते हैं। तो नंबर ऑफ जाइलम एंड फ्लोएम पैचेस हियर इन केस ऑफ डाइकॉट रूट इज 2 to 4, यहाँ होते हैं बहुत ज़्यादा नंबर में। तो यहाँ लिखूंगा मैं पहली डिफरेंस, डाइकॉट रूट में क्या है, कौन सा फीचर है जो मोनोकॉट रूट में नहीं होता है, वो है नंबर ऑफ जाइलम और फ्लोएम पैचेस। xylem and phloem patches vary from कहाँ से कहाँ शाबाश 2 to 4। अगर 2 होंगे वी कॉल इट डायआर्क या डायआर्च, 4 होंगे वी कॉल इट टेट्रार्क। 2 to 4 डायरेक्ट टेट्रार्क, मतलब को 2 जाइलम भी हो सकते हैं, 2 फ्लोएम हो सकते हैं, 3 जाइलम हो सकते हैं, 3 फ्लोएम हो सकते हैं, 4 जाइलम हो सकते हैं, 4 फ्लोएम हो सकते हैं। लेकिन यहाँ नंबर ऑफ जाइलम और फ्लोएम बहुत ज़्यादा होते हैं, नंबर में 6 7 8 9 मल्टीपल। मतलब को यहाँ पे जाइलम एंड फ्लोएम पैचेस मीन्स पार्टस और मोर देन 6 या 6 भी हो सकते हैं, ग्रेटर देन 6 भी हो सकते हैं। इसको हम बोलते हैं बहुत सारे होना पॉलीआर्च, मतलब मल्टीपल जाइलम एंड फ्लोएम पैचेस। ये पहली डिफरेंस है। इसके बाद सेकंड डिफरेंस क्या है, यहाँ जो आपको जाइलम दिखता है और यहाँ जो जाइलम दिखता है, ये याद रखिएगा। यहाँ जाइलम अगर मैं दिखाऊंगा आपको थोड़ा सा, यहाँ जाइलम होता है थोड़ा इस शेप का, मतलब को थोड़ा एंगुलर होता है, पॉलीगोनल होता है। लेकिन यहाँ जाइलम होता है सर्कुलर, गोलाई में होता है जाइलम। मीन्स यहाँ होता है जाइलम इज एंगुलर, मतलब को पॉलीगोनल एंगल जैसे ऐसे। यहाँ पे जाइलम कैसा होता है, जाइलम इज सर्कुलर इन आउटलाइन, गोलाई में होता है थोड़ा ऐसे। इसमें होता है जाइलम कुछ ऐसे इस शेप का, यहाँ पे जाइलम होता है इस शेप का गोलाई में। शाबाश। तीसरी डिफरेंस क्या है, यहाँ सेंटर में जो टिश्यू होता है, रूट हो या स्टेम, उसको हम बोलते हैं ना पिथ या मेड्यूला, वो पैरेन्काइमा स्टोरेज टिश्यू होता है। यहाँ पिथ तो सेंटर में या तो होता नहीं है या होता है बहुत ज़्यादा रिड्यूस्ड, लेकिन यहाँ होता है वेल डेवलप्ड पिथ सेंटर में। तो क्या लिखेंगे, पिथ इज इधर रिड्यूस्ड, या तो बहुत ज़्यादा कम होगा क्वांटिटी में, और एब्सेंट। सेंट्रल टिश्यू जिसको हम बोलते हैं नाम पिथ, जो स्टोरेज का काम करता है, या तो वो होगा ही नहीं या होगा रिड्यूस्ड। यहाँ पे पिथ इज वेल डेवलप्ड, यहाँ वेल डेवलप्ड पिथ होता है सेंटर में, जो स्टोरेज का काम करता है कॉर्टेक्स की तरह। कॉर्टेक्स और पिथ दोनों करते हैं एक जैसे काम, स्टोरेज ऑफ फूड का। सो दीज आर द मेन डिफरेंसेस बिटवीन डाइकॉट एंड मोनोकॉट रूट। तो दोनों चीज़ों में आपको सेम चीज़ें दिखेंगे, लेकिन डिफरेंस 3 है। यहाँ एपिडर्मिस, यहाँ भी एपिडर्मिस, यहाँ भी कॉर्टेक्स, यहाँ भी कॉर्टेक्स स्टोरेज का काम करता है, एपिडर्मिस प्रोटेक्शन का काम करता है। यहाँ भी एंडोडर्मिस एक लेयर, यहाँ भी एंडोडर्मिस, यहाँ भी पेरिसाइकल, यहाँ भी पेरिसाइकल। फिर जाइलम फ्लोएम का अरेंजमेंट सेम है, यहाँ भी रेडियल होगा, यहाँ भी रेडियल होगा, लेकिन जाइलम का नंबर यहाँ पे 2 से 4 होता है, वहाँ होता है 6 से ज़्यादा। यहाँ होता है एंगुलर, वहाँ होता है सर्क्यूलर। यहाँ पिथ सेंटर में नहीं होता है, यहाँ पे होता है। दिस आर द मेन डिफरेंस बिटवीन द डाइकॉट एंड मोनोकॉट रूट। अब आगे बढ़ेंगे लास्ट क्वेश्चन की ओर। वो क्या है, ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ डाइकॉट वर्सेस मोनोकॉट लीफ। अब लीफ के बारे में बात है। डाइकॉट लीफ में जैसे डाइकॉट आप कैसे पहचानोगे, जैसे आपके पास है सनफ्लावर का लीफ, या आपके पास है पॉपुलस का लीफ, आपके पास है चिनार का लीफ, ये डाइकॉट्स है सारे। मोनोकॉट्स हो गए ग्रासेस, यही जो आपके पास है, जैसे मेज है, जैसे राइस है, जैसे वीट है, ये मोनोकॉट्स होते हैं। इन दोनों के लीव्स में फिर से हमें डिफरेंस बोलने, क्या क्या डिफरेंस है समझना। मैं लिखूंगा एक साइड से डाइकॉट, जिसको हम कभी कभार लिखते हैं डॉर्सिवेंट्रल,
सॉरी, डॉर्सिवेंट्रल, डॉर्सिवेंट्रल, या कभी कभार बोलते हैं बाइफेशियल लीफ। और मोनोकॉट को बोलते हैं कभी कभार, हम लिख सकते हैं यहां से मोनोकॉट लीफ बोलो। इसको बोलते हैं कभी कभार आइसोबाइलेटरल, या बोलते हैं यूनिफेशियल लीफ। यूनिफेशियल ऐसा नाम क्यों, अभी दिखाता हूं। शाबाश। डाइकॉट और मोनोकॉट लीफ में हमें डिफरेंस भी देखने, सिर्फ डिफरेंसेस याद रखिएगा। पहले डिफरेंस बोलता हूं मैं यहां पे आपको। डाइकॉट हो या मोनोकॉट लीफ, कोई भी लीफ इसमें होता है, लीफ का होता है अपर कवर, अपर एपिडर्मिस, और नीचे वाला कवर लोअर एपिडर्मिस, अपर एपिडर्मिस और लोअर एपिडर्मिस। मोनोकॉट में भी होगा, डाइकॉट में भी होगा नॉर्मल। लेकिन डिफरेंस कहां पे आपको नजर आ जाएगी, देखो मोनोकॉट लीफ के अंदर जो अपर एपिडर्मिस है, इस पे आपको सिटोमेटा नॉर्मली नजर नहीं आता है, होगा न होने के बराबर। लेकिन नीचे वाले एपिडर्मिस पे, नीचे वाले कवर पे आपको सिटोमेटा दिखेगा। लेकिन आप देखो मोनोकॉट, मोनोकॉट में ऊपर वाले पोर्शन पे भी यहाँ पे आपको सिटोमेटा दिखता है, यहाँ भी सिटोमेटा दिखता है। लेकिन डाइकॉट के अंदर, ये डाइकॉट है ऊपर वाला, दिस वन इज डाइकॉट, मैं लिखूंगा डी, दिस मोनोकॉट। को डाइकॉट लीफ में आपको ऊपर वाले एपिडर्मिस पे सिटोमेटा नॉर्मली नहीं दिखेगा, लेकिन सिर्फ और सिर्फ नीचे वाले एपिडर्मिस पे आपको सिटोमेटा दिखेगा। लेकिन मोनोकॉट के अंदर दोनों एपिडर्मिस के ऊपर आपको सिटोमेटा दिखेगा। तो पहली डिफरेंस ये आ जाएगी नंबर 1। दूसरा कलर में इस्तेमाल करूंगा। क्या है पहली डिफरेंस, सिटोमेटा यूजुअली प्रेजेंट किस पे, ऑन लोअर एपिडर्मिस बोलो, लोअर को हम बोलते हैं कभी कभार एबैक्शियल भी, या कभी कभार इसको बोलते हैं वेंट्रल भी, वेंट्रल साइड या वेंट्रल एपिडर्मिस। शाबाश। डाइकॉट लीफ के अंदर सिटोमेटा होता है restricted usually to the lower epidermis. Stomata usually present on lower or abaxial or ventral side or ventral epidermis. लेकिन यहाँ मोनोकॉट में दोनों पे होता है। तो यहाँ पे मैं इसको नाम दूंगा, अगर lower epidermis पे होगा we call it, मैं ब्रैकेट में लिख सकता हूँ hypocytomatic. Hypo means below, cytomatic means stomata. Stomata is present on lower epidermis. Hypo means below lower epidermis. शाबाश। यहाँ पे सिटोमेटा दोनों साइड्स पे है, शाबाश। सिटोमेटा present on both sides या both surfaces, both epidermal layers, जिसको हम नाम देते हैं एम्फीसिटोमेटिक। एम्फी मीन्स बोथ, एम्फीसिटोमेटिक। यहाँ क्या है, डाइकॉट्स में है सिर्फ और सिर्फ लोअर एपिडर्मिस पे, लेकिन मोनोकॉट्स के अंदर है ऊपर वाले सरफेस पे भी, नीचे वाले सरफेस, वी कॉल इट एम्फीसिटोमेटिक। यहाँ पे हाइपोस्टोमेटिक ओनली ऑन लोअर साइड, यहाँ पे एम्फीसिटोमेटिक ऑन बोथ सरफेस। ये है पहली डिफरेंस। दूसरी डिफरेंस क्या है, डिफरेंस नंबर 2। शाबाश। देखो लीफ को सबसे ज्यादा ट्रांसपिरेशन का खतरा रहता है। रीजन क्यों है, क्योंकि जो भी प्लांट वाटर करता है एब्जॉर्ब, ये अल्टीमेटली ज्यादातर लीफ की ओर ही पहुंचाया जाता है, बिकॉज फोटोसिंथेसिस में वन ऑफ द रॉ मटेरियल है वाटर। सो जब लीफ के ऊपर लाइट पड़ेगी, लाइट विल इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ द लीफ, इसकी वजह से वाटर हो जाएगा इवेपोरेट, भाग जाएगा। लेकिन लीफ रेस्पॉन्ड करता है इस हायर टेम्परेचर को बाय सिंथेसाइजिंग थिक लेयर ऑफ फैट।
थिक लेयर ऑफ वैक्सी सब्सटेंस कॉल्ड क्यूटिकल। लीफ के सरफेस के ऊपर, लीफ के एपिडर्मिस के ऊपर बनता है फैटी लेयर, वैक्सी लेयर, क्योंकि फैट वाटर को भागने नहीं देगा, दैट्स कॉल्ड क्यूटिकल। तो क्यूटिकल होता है लीव्स के ऊपर, लीफ के एपिडर्मिस के ऊपर होता है क्यूटिकल। एपिडर्मिस खुद सिंथेसाइज करता है। यहाँ देखो ये एपिडर्मिस है, ये तो एपिडर्मिस है, यहाँ ये वाला एपिडर्मिस, ठीक। लेकिन एपिडर्मिस के ऊपर आप कवर देख रहे हो, ये इसका नाम है क्यूटिकल। ये क्यूटिकल है। यहाँ पे भी होगा, इस वाले पोर्शन से भी क्यूटिकल होगा मुझे। यहाँ पे भी एपिडर्मिस है, लेकिन एपिडर्मिस के ऊपर क्यूटिकल होगा। एपिडर्मिस के इस साइड ऊपर वाले में क्यूटिकल होगा। वो क्यूटिकल एक फैटी लेयर होता है, वैक्सी लेयर होता है, क्यूटिन फैट का बना होता है। ये क्या करता है, ये ट्रांसपरेशन को रिड्यूस करता है, वाटर लॉस से ये थोड़ा बहुत बचाता है लीफ को। लेकिन अगर हम देखेंगे डाइकॉट लीफ, इसमें होता है थिकर क्यूटिकल ऊपर वाले पोर्शन पे, थिनर होता है नीचे वाले पोर्शन पे। मीन्स एपिडर्मिस ऑफ डाइकॉट लीफ हैज थिकर क्यूटिकल ऑन अपर एपिडर्मिस, क्योंकि वहां ज्यादा लाइट पड़ती है लीफ के ऊपर। नीचे वाले साइड में लाइट डायरेक्टली नहीं पड़ती है, वहां ट्रांसपेरेशन खतरा भी कम है। नीचे वाले पोर्शन पे क्यूटिकल की थिकनेस कम होती है, ऊपर वाले पोर्शन पे ज्यादा, क्योंकि वहां ट्रांसपेरेशन का खतरा ज्यादा है, ऊपर वाले पोर्शन में लाइट भी ज्यादा पड़ती है। लेकिन यहाँ इक्वल थिकनेस होती है क्यूटिकल की, क्योंकि मोनोकॉट्स में लीफ होता है पैरेलल टू द स्टेम, डाइकॉट्स में होता है विद रेस्पेक्ट टू स्टेम एट राइट एंगल्स। यहाँ पे ज्यादा लाइट पड़ती है, तो यहाँ से ट्रांसपरेशन खतरा भी ज्यादा है, तो इसने ज्यादा थिक क्यूटिकल लगाया है। नीचे वाले पोर्शन पे डायरेक्टली लाइट पड़ती नहीं है, वहाँ पे क्यूटिकल ज्यादा थिन होता है, तो ट्रांसपरेशन खतरा भी वहाँ पे ज्यादा नहीं है। लेकिन इन केस ऑफ मोनोकॉट्स लीफ इज लाइक दिस, तो यहाँ से पड़ती है लाइट 1 बजे तक, 1 बजे के बाद यहाँ से पड़ती है लाइट, दोनों साइड्स में इक्वल चांस है, इसलिए क्यूटिकल भी इक्वली थिक होता है दोनों साइड्स में। तो डाइकॉट्स में क्या होता है, थिक क्यूटिकल ऑन अपर को हम बोलते हैं एक और नाम, अपर डॉर्सल। जैसे यहाँ पे लवर को बोलते हैं वेंट्रल, डॉर्सल हम बोल सकते हैं एडैक्शियल, लवर को बोलते हैं एबैक्शियल, अपर को बोलते हैं एडैक्शियल। शाबाश। थिक क्यूटिकल ऑन अपर ओब्लिक डॉर्सल ओब्लिक एडैक्शियल साइड एंड थिन ऑन लवर एंड थिन ऑन लवर साइड। लवर साइड में थिनर क्यूटिकल होता है, ऊपर वाले साइड में थिक होता है, क्योंकि ऊपर वाले साइड में ज्यादा ट्रांसपरेशन का खतरा भी है। यहां क्या है, सेम थिकनेस ऑफ क्यूटिकल ऑन आइदर साइड, दोनों सरफेस पे इक्वल थिकनेस है क्यूटिकल की, क्योंकि दोनों साइड्स में इक्वल खतरा है ट्रांसपरेशन का, दोनों साइड्स में इक्वली लाइट पड़ती है। तीसरी डिफरेंस, यहां ऊपर वाले पोर्शन में अगर आप देखेंगे, यहां एपिडर्मिस दोनों साइड्स में इक्वली होता है। ऑल सेल्स इन एपिडर्मिस ऑफ बोथ अपर एज वेल एज लोअर एपिडर्मिस दे हैव सेम शेप, सेम साइज। लेकिन मोनोकॉट में क्या होता है, फ्यू सेल्स ऑन अपर एपिडर्मिस, अपर एपिडर्मिस के कुछ सेल्स होते हैं बाकी सेल्स के मुकाबले में बड़े। फ्यू सेल्स ऑन अपर एपिडर्मिस इन मोनोकॉट लीफ दे आर लार्जर, कलरलेस, दीज सेल्स आर कॉल्ड मोटर और बुलिफॉर्म सेल्स। ऐसा डाइकॉट लीफ में नहीं होता है। तो मैं लिखूंगा यहां पे, ऑल सेल्स ऑफ एपिडर्मिस और सेम, मतलब को सेम साइज, सेम शेप, व्हाटएवर। लेकिन मोनोकॉट में ऐसा नहीं होता है। फिर क्या होता है, यहां लिखूंगा, फ्यू सेल्स ऑफ अपर एपिडर्मिस, अपर के बदले आप लिख सकते हो, मैंने लिखा यहाँ पे, अपर के बदले डॉर्सल भी लिख सकते हैं, एडैक्शियल भी लिख सकते हैं। फ्यू सेल्स ऑफ अपर एपिडर्मिस हैव, क्या होता है, हैव larger colorless cells call, इनका नाम क्या है, मोटर
oblique bulliform cells called motor oblique bulliform cells, जिनका फंक्शन होता है एक्सपेंशन एंड फोल्डिंग ऑफ लीव्स। जब इनके अंदर वाटर जाता है लीफ होता है एक्सपैंड, फ्लैट हो जाता है लीफ, लेकिन जब इनसे वाटर लूज हो जाता है लीफ गेट्स फोल्डेड और लीफ रोल्स। दीज बुलिफॉर्म और मोटर सेल्स आर प्रेजेंट ओनली इन मोनोकॉट लीव्स। किस पोर्शन पे? दोनों सरफेस के ऊपर के, ओनली ऑन अपर, only on upper epidermis. Few cells on upper epidermis are larger and colorless. These cells are called motor or bulliform cells, having role in expansion and folding of leaves. लेकिन bulliform या motor cells are completely absent in dicots. Fourth difference, यहाँ जो dicot leaf के अंदर होता है या monocot leaf हो whatever, या upper epidermis से यहाँ, या upper epidermis से ये नीचे है लोअर एपिडर्मिस। दोनों एपिडर्मल लेयर्स के बीच जो टिश्यू होता है लीफ के अंदर, इसको हम बोलते हैं मीजोफिल टिश्यू। ये फोटोसिंथेटिक टिश्यू होता है, इसी में प्रोसेस फोटोसिंथेसिस होती है। इन सेल्स को हम बोलते हैं ना मीजोफिल सेल्स, टिश्यू को नाम देते हैं मीजोफिल टिश्यू। इन सेल्स में होते हैं अबंडेंट क्लोरोप्लास्ट्स विद क्लोरोफिल, और यही सारी फोटोसिंथेसिस प्लांट के लीफ में होते हैं इसी मीजोफिल में, जो होता है अपर और लोअर एपिडर्मिस के बीच में मौजूद। डाइकॉट्स के अंदर आपको पता है ऑलरेडी, ऊपर वाले पोर्शन पे पड़ती है ज़्यादा लाइट। वो जब ज़्यादा लाइट पड़ेगी वहाँ फोटोसिंथेसिस की प्रोबेबिलिटी भी ज़्यादा है, ज़्यादा फोटोसिंथेसिस के चांसेस है, क्योंकि लाइट ज़्यादा पड़ती है। इसीलिए मीजोफिल के सेल्स वहाँ होते हैं ज़्यादा कम्पैक्ट। आप देखो सेल्स ऑफ मीजोफिल आर मोर कम्पैक्ट हियर, लेकिन नीचे वाले पोर्शन में थोड़ा ये लूज होते हैं, दूर दूर होते हैं, क्योंकि वहाँ लाइट इंटेंसिटी कम होती है। लेकिन मोनोकॉट के अंदर दोनों साइड्स में इक्वल लाइट पड़ती है, वहाँ ज़्यादा जमलिंग नहीं होते एक सरफेस पे, वहाँ इक्वली होते हैं, यूनिफॉर्मली होते हैं मीजोफिल सेल्स मौजूद ऑल अक्रॉस। सो हम लिख सकते हैं मीजोफिल के दो हिस्से हो जाते हैं। ऊपर वाला पोर्शन जो कंपैक्ट सेल्स का बना होता है मीजोफिल टिश्यू, इसको हम बोलते हैं नाम पेलिसेड मीजोफिल या पेलिसेड पैरेन्काइमा, और जो नीचे वाले सेल्स होते हैं वी कॉल इट स्पंजी मीजोफिल और स्पंजी पैरेन्काइमा। ये डाइकॉट्स में आपको मीजोफिल के दो हिस्से हो जाते हैं बिकॉज ऑफ डिफरेंशियल सोलर एनर्जी, क्योंकि लाइट ज़्यादा अपर एपिडर्मिस पे पड़ती है। लेकिन मोनोकॉट्स के अंदर इस साइड भी क्योंकि ये होता है लीफ पैरेलल टू स्टेम, दोनों साइड्स में इक्वली पड़ते हैं। यहाँ पे मीजोफिल नहीं होता है डिफरेंशिएट, आपको यूनिफॉर्म मीजोफिल मिलेगा, नो पेलिसेड एंड स्पॉन्जी पैरेन्काइमा। मैं लिखूंगा डाइकॉट्स में मीजोफिल टिश्यू या मीजोफिल जो फोटोसिंथेटिक टिश्यू है इज डिफरेंशिएटेड इनटू अपर, ऊपर वाला पोर्शन, कंपैक्ट पेलिसेड एंड लोअर लूज स्पंजी पैरेन्काइमा। पेलिसेड पैरेन्काइमा ऊपर और स्पंजी पैरेन्काइमा नीचे। अपर एपिडर्मिस की ओर होता है पेलिसेड पैरेन्काइमा विच कंपैक्ट, यहां दिख रहा है आपको ये कंपैक्ट है, ये कंपैक्ट है। अपर एपिडर्मिस की ओर एक कंपैक्ट मीजोफिल होता है, और लोअर लूजली अरेंज्ड स्पंज पैरेन्काइमा नीचे वाले एपिडर्मिस की ओर होता है। लेकिन यहाँ आपको ऐसा नहीं दिखता, तो यूनिफॉर्मली दिखेगा। तो यहां से लिखेंगे नंबर 4, मीजोफिल इज अनडिफरेंशिएटेड, मतलब को ये यूनिफॉर्म है। मीजोफिल इज अनडिफरेंशिएटेड, या आप लिखेंगे होमोजीनियस, एक जैसे सेल्स होते हैं, कंपैक्ट, कहीं ज़्यादा लूज नहीं होता है, यूनिफॉर्म म्यूजोफिल होता है इनके सब मोनोकॉट्स बिकॉज लाइट दोनों साइड्स में इक्वली पड़ते हैं। सो दीज आर द मेन डिफरेंस बिटवीन डाइकॉट एंड मोनोकॉट लीफ। अब एक लाइन में बोलूंगा आपको, यहाँ मैंने डाइकॉट लीफ का बोला नाम, एक और डॉर्सी वेंट्रल, मीन्स इसमें डॉर्सल और वेंट्रा मीन्स अपर और लोअर सरफेसेस अलग अलग है, क्योंकि अपर वाले सरफेस में यहाँ पे स्टोमेटा नहीं है, नीचे वाले में है। तो यहाँ पे मैंने बोला आइसोबाइलेटर मीन सेम, ऊपर वाले साइड में भी नहीं है, नीचे वाले साइड में भी नहीं है। यहाँ थिक क्यूटिकल या थिन है, यहाँ दोनों में
इक्वल थिकनेस है क्यूटिकल के, दोनों साइड्स में स्टोमेटा मौजूद है, वो आपको दोनों साइड्स एक जैसे लग रहे, दैट्स व्हाई आइसोबाइलेटर। बाइफेशियल मीन्स इसका अपर वाला फेस जो है स्टोमेटा के बगैर है, नीचे वाला सरफेस स्टोमेटा के साथ है, ऊपर थिक क्यूटिकल है, नीचे थिन क्यूटिकल है, मीन्स ये है बाइफेशियल, अलग अलग फेसेस है दो एपिडर्मिसेस। लेकिन यहाँ है सेम, वी कॉल इट यूनिफेशियल, बिकॉज ऊपर भी सेम थिक है क्यूटिकल, नीचे भी, ऊपर भी क्यूटिकल नीचे भी क्यूटिकल सेम, ऊपर भी स्टोमेटा नीचे भी स्टोमेटा, तो आपको दोनों सरफेसेस एक जैसे लग रहे, वी कॉल इट यूनिफेशियल। सो दिस इज ऑल अबाउट प्लांट एंड नॉट मी। विश यू ऑल द बेस्ट।